have to, talk. I have Sir, to. we of जी जी, आप कुछ जी कह सर, रही थी सो जी। हाँ सर, जी आपका इंट्रोडक्शन पार्टिसिपेंट से करवाना है मुझे, एंड आई वांट टू जी ऑफिशियली वेलकम यू. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस, because we are always very delighted to have you, sir, and when you your contribution and your knowledge sharing is immense. The kind of experience and the kind of efforts that you have put in your subject with soul and knowledge, it's really commendable, sir. We really appreciate that. So, my dear participants, it's a great with great happiness and with great respect, I welcome our next speaker and our next resource person, Professor Danish Iqbal, to this 2 weeks online interdisciplinary refresher course on the topic Holistic Empowerment for Stress Management, a multidisciplinary approach integrating literature, arts, social sciences, and medicine. This is the ninth day, sir, and this is the second session of the ninth day. Today, Professor Iqbal would be talking on the topic of his lecture is impacts of using theater as a discipline. Just prior to this, we had a wonderful session by Professor Geeta Vishwanath ji on films. So our this session is going to be, sir would be talking to us on the impacts of using theater as a discipline. Before Sir starts his lecture, I would like to give a brief introduction about Sir. Professor Iqbal is a distinguished playwright, director, and academic. That's a wonderful combination to have, Sir. His career spanning over 30 plus years. His multifaceted contributions to theater, mass media, and creative writing reflects a deep commitment to cultural tradition and contemporary innovation. Currently, Sir is a very senior faculty member at AJK Mass Communication Research Center, Jamia Millia Islamia, New Delhi. Danish Sir is renowned for his impactful work in stagecraft, script writing, and media, creative, erudite, and original. Sir has done pioneering work in script writing and drama, combining different styles seamlessly to project the unifying thread of Indian literary traditions. With his innovative creativity that transcends cultural boundaries, Sir's robust creative and dramatic works have been emulated by many of his peers in the field. Sir has also been conferred with many honors and awards. He has been honored more than 15 prestigious awards, which includes the Lassa Call Award for National Integration for his documentary Kahani Ek Mukhbir program ki. The Gandhian Philosophy Award for Sandarbhon Ke Akashdeep and the prestigious Ghalib Award for Theatre and Drama. He's also had many radio plays such as Jangli Booty, Bail Jo Dharti Niche, and Patjhad Ke Baad Ka Mausam. He has received the Best Radio Play Award from the Government of India. Additionally, he has also been recognized with the most prestigious Mohan Rakesh Samman for his play Dilli Jo Ek Sheher Tha, the Nat Samrad Award for playwriting, and the Karamveer Chakra for his outstanding contribution to arts and media. This looks like so much of efforts and passion throughout, sir. As I read your profile, he's also had he's also an academic, like I already mentioned, and many professional achievements. Sir holds an honors degree in chemistry, postgraduate degree in philosophy, where he was a gold medalist. He has also qualified for the National Eligibility Test. He has been awarded UGC's GRF. Sir has been he's had professional training that includes programs at BBC, Weshwell, and the National Academy of Broadcasting. Danish Sir has served in over 10 significant academic and advisory roles, also including mentoring the PM's Yuva scheme, being a member of the advisory panel of the National Book Trust of India, Department of Science and Technology, and holding leadership positions such as coordinator
of the Meta University Program Development Communication and Placement Coordinator at AJK MCRC, that is Jamia Millia Islamia. Sir is, as you can see, an entirely creative person along with his academic pursuits. He has scripted and directed over 38 stage plays, which include the critically acclaimed productions such as I already mentioned, Dilli Jo Ek Sheher Tha, Dara Shiko, Amrita, a sublime love story, Sir Iqbal, Kuch Ishq Kiya Kuch Kaam, Anti-National Ghalib, Sara Ka Sara Asma, and Sahib. His works have been performed in more than 5 countries, including at the Edinburgh Fringe Theatre Festival and in cities such as Dubai, London, Qatar, and Germany. Sir's recent production include Madhubala, a celestial star tragedy, and Tanha Chand. How beautiful is that, sir? Sir has played a pivotal role in New Age Dastan Goi performances, scripting and directing 29 ongoing Dastan Goi presentations. So let me just inform you that we've had a session on Dastan Goi also and how Dastan Goi impacts stress. So we've had one session on this also. His notable Dastan Goi includes Dastan-e Ram, Dastan-e Gandhi, and Dastan-e Mahabharat. Now, Sir's had many media and live presentations also. In the new digital and media space, Professor Iqbal has produced over 200 presentations promoting art, culture, and literature at various prestigious platforms. Sir has collaborated with platforms like Rekhta, Doordarshan, and Red FM, engaging in more than 400 interactive sessions, live poetry presentations, and webcasts on significant cultural and literary topics. His contribution includes tributes to literary giants, explorations of the Urdu Hindustani language, and celebrations of Indian cultural heritage and Hindu mythology. I could only conclude by this one quotation from the Hindu that wrote about him in a special feature on him, on Professor Iqbal. The Hindu, I quote the Hindu, well, suffice to say, there are more colors on Danish's firmament than a rainbow contains. Someday he is a playwright, another he writes documentaries, another day he turns a producer director. Yet another day sees him as an author, just as many an evening he has been an MC. So, my dear participant, my dear friends, I am honored to invite Professor Danish Iqbal to speak on the impacts of using theater as a discipline. Sir, आपका खैर मकदम है. Welcome, sir. जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा मुबीन ज़हरा साहिबा और कॉलेज के सभी लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी लोग और सभी पार्टिसिपेंट्स, और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद है, तो इट इज़ वंडरफुल टू इंटरेक्ट विद सो मैनी great teachers and great persons, researchers, etc. etc. जैसा कि अभी आपको सैयदा मुबीन ज़हरा ने बताया कि मुझे सब्जेक्ट दिया गया था इम्पैक्ट ऑफ थिएटर, लेकिन कल मेरी बात हो रही थी अरविंद जी से, तो उन्होंने बताया कि अनूप त्रिवेदी साहब और डॉक्टर सईद आलम साहब ने जो उनके सेशंस थे, तो उसमें आलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर करनी जो मुझे करना चाहिए थी। तो इसका मतलब कि मेरा काम मेरे दो साथी, मेरे दो अच्छे दोस्त पहले ही कर चुके हैं। तो उसके बाद कल से मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए अपने सब्जेक्ट में, कुछ ऐसा क्या मैं इनोवेशन करूं, क्या ऐसी बात करूं कि कोई नई बात भी पैदा हो जाए और सब्जेक्ट भी वही रहे। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ थिएटर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, अनूप त्रिवेदी साहब की ज़बानी और डॉक्टर सईद आलम साहब के ज़रिए भी। तो इसलिए आज मैं बात करना चाहूँगा। अभी आपको डॉक्टर मुबीन ज़हरा ने बताया कि किसी ज़माने में हम केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो आज का सब्जेक्ट मैं रखना चाहूँगा द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एंड appreciation.
न्यूरोकेमिस्ट्री का मतलब ये कि जब हम थिएटर में परफॉर्म करते हैं, एक डांसर के तौर पे परफॉर्म करते हैं, या एक सिंगर के तौर पे परफॉर्म करते हैं, या एक एक्टर के तौर पे परफॉर्म करते हैं, तो हमारे हमारे ब्रेन में किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह का हार्मोनल एक इक्विलिब्रियम पैदा होता है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है, जो थिएटर की परफॉर्मेंस से, या मतलब एक अच्छी म्यूजिकल परफॉर्मेंस से, या हमारी शोभना नारायण साहिबा जब कथक का एक बड़ा कंसर्ट करती हैं, या मंजरी चतुर्वेदी, तो उनके जहन के अंदर जो केमिकल्स हैं, और जो उनकी फीलिंग्स हैं, और जो उनका जिस्म है, यानी कि बॉडी और ब्रेन, ये सब मिलके किस तरह से एक तरह की कोरियोग्राफी करते हैं, केमिकल कोरियोग्राफी, यानी कि बहुत से केमिकल्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर एक परफॉर्मेंस देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। तो ये तो मैंने एक केमिस्ट्री से एक सब्जेक्ट लिया, एक टाइटल लिया कि द न्यूरो केमिस्ट्री। अगर मैं इस पे रिसर्च पेपर लिख रहा होता तो मैं इसका टाइटल रखता द न्यूरो केमिस्ट्री ऑफ ए theatrical performance and appreciation, a lively choreography of brain, body and feelings। लेकिन लेकिन चूंकि मैं आज हिंदुस्तानी ज़बान भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी उर्दू भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए आम ज़बान में, आम भाषा में अगर इस टाइटल को मैं बयान करने की कोशिश करूँ, एक आम आदमी को बताऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और कभी ज़मी तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो जो थ्रेटिकल परफॉर्मेंस है, या डांस की परफॉर्मेंस है, या म्यूजिक की परफॉर्मेंस है, इसको हम कह सकते हैं एक मुकम्मल जहां की तलाश। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये बड़ी टेक्निकल लगेगी, इसलिए मैं एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ कि अगर हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को रखें अपने सामने, बहुत बड़े का मतलब जो अच्छी खासी कमाई कर रहे हो, बहुत अच्छा उनकी आमदनी हो, और एक थिएटर प्रैक्टिशनर को हम लें, और अगर इन दोनों की इनकम का कंपैरिजन जो है 1:100 का हो, यानी कि जो थिएटर वाला है आमतौर से तो कुछ कमाते नहीं है, तो उनका जो भी रिवार्ड होता है वो केमिकल होता है, वो मतलब सेरिब्रल होता है, और उनका जो रिवार्ड होता है वो इनर होता है, इंट्रिंसिक होता है। और जो बिजनेस पर्सन है, जिनकी कोई बहुत बड़ी दुकान है, या कोई बहुत बड़ा स्टोर है, या कोई बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, तो उनका जो रिवार्ड है वो फाइनेंशियल है, और वो जो है ज़्यादा नज़र आने वाला है। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, तो जो बिजनेस पर्सन है जो तकरीबन 100 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे होंगे, अगर इन दोनों की हैप्पीनेस को, या फुलफिलमेंट को, या उनकी फीलिंग्स को हम न्यूरोकेमिकल चश्मे से, लेंस से देखने की कोशिश करें, तो किस तरह की सिचुएशन सामने आएगी, ये आज मैं बात करना चाहूँगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक कोरियोग्राफी होती है न्यूरोकेमिकल्स की, जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है। तो इसमें जो एक्टर्स होते हैं, जो इसके डांसर्स होते हैं, वो कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स भी हम उनको कहते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है या हार्मोन है, उसको हम कहते हैं डोपामीन, और एक है सेरोटोनिन, और एक है ऑक्सीटोसिन, और एंडोर्फिन। इससे पहले जब हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो हमने जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनकी भी बात की, तो उनके बारे में भी आज की इस गुफ्तगू में, आज की बातचीत में मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी कुछ कहा जाए। लेकिन बुनियादी एतबार से ये जो चार एक्टर्स हैं या चार डांसर्स हैं हमारे जहन के अंदर, जो अपना काम करते हैं, वो डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कोई मुझे रिसर्च पेपर मिल जाए जिसमें कोई इस तरह की स्टडी की गई हो, जिसमें किसी थिएटर प्रैक्टिशनर और किसी बड़े बिजनेसमैन के या मतलब इन ग्रुप्स की कोई स्टडी की गई हो, इन टर्म्स ऑफ देयर फुलफिलमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ देयर हैप्पीनेस दे डिराइव फ्रॉम देयर रूटीन वर्क।
तो बदकिस्मती ये है कि मैं ढूंढ नहीं पाया। तो इससे एक अच्छी गुंजाइश ये पैदा होती है कि इसके बारे में एक अच्छी स्टडी की जा सकती है। तो अगर मैं नहीं ढूंढ पाया, इसका मतलब कि हो सकता है स्टडी ना हुई हो, और अगर ना हुई हो तो इस वक्त हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए इस बात का बहुत अच्छा मौका है कि इस सब्जेक्ट को उस पे वो फर्दर काम कर सकते हैं। और अगर इस पे कोई स्टडी हुई है तो नेचुरली वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और बाकी लोगों तक भी वो स्टडी पहुंच सकती है। तो चूंकि कोई ऐसी स्टडी मिली नहीं जिसमें एक बहुत सारे पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन और बहुत कम पैसे कमाने वाले कोई थिएटर या आर्ट या कल्चरल आर्ट्स के जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लाइफस्टाइल को और उनकी फुलफिलमेंट को, उनका अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच दे ड्राइव फ्रॉम देयर वर्क, इसको कंपेयर किया गया। तो इसलिए मैं आप सबकी इजाज़त से आज की ये जो गुफ्तगू है, आज की ये टॉक है, ये मैं डेटा पे बेस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह की रिसर्चेस हुई हैं जिनमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और न्यूरोलॉजिकल वेलबींग पे कई स्टडीज़ हुई हैं। तो उनके रिजल्ट्स को सामने रख के मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। तो देखिए, Wonderful. जो थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो डांसर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों या परफॉर्मर्स हों किसी भी तरह के, तो ये देखा गया है कि उनके अंदर हायर लेवल ऑफ फुलफिलमेंट पाया जाता है, और उनको अक्सर व बेशतर न्यूरोकेमिकल बूस्ट मिलता है। न्यूरोकेमिकल बूस्ट का मतलब ये कि जो मेरे न्यूरोकेमिकल्स हैं वो एक नॉर्मल अमाउंट में होते हैं, और कई बार वो बहुत सारी तादाद में आ जाते हैं। जैसे हमने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और हमको स्टैंडिंग ओवेशन ऑडियंस ने दिया, तो उस वक्त जो अप्रिसिएशन उनकी आंखों में होता है, जो हमारी परफॉर्मेंस के बाद आता है, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें अचानक फ्लड गेट्स जो हैं खुल जाते हैं हैप्पीनेस के, और बहुत सारा ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे एंडोफिन्स, और जो डोपामीन है, इंट्रिंसिक डोपामीन जो अंदर से सेक्रीट होता है, ये अचानक जो परफॉर्मर है उसको मिल जाते हैं, और इसकी वजह से एक हैप्पीनेस का एहसास होता है, एक तरह की हैप्पीनेस। और ये जो हैप्पीनेस है ये बहुत ग्रेटर हैप्पीनेस लगती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। और उस वक्त इंसान को ये याद नहीं आता कि उसके उसके सेविंग बैंक में सिर्फ 20,000 रुपए रह गए हैं। उस वक्त उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है, वो दुनिया की सबसे अच्छी सिंगर है, और सबसे अच्छी सिंगर नहीं है तो वो अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। कोई डांसर है, उसे लगता है कि नहीं, मतलब उसका उसकी जो जर्नी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो जब हम रेगुलर परफॉर्मेंसेस इस तरह की करते के रहते हैं तो हमको जो डोपामीन की डोज है जो मिलती है वो अक्सर मिलती रहती है। यानी कि मान लीजिए कि मैं मंथली परफॉर्मेंसेस करता हूँ, डॉक्टर सईद आलम साहब से आपका इंटरेक्शन हुआ, वो हर हफ्ते 2-3 ड्रामे कर देते हैं, तो वो तो पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं। अगर उनको ये डोपामीन और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन हर हफ्ते ना मिले तो उनको नथिंगनेस महसूस होने लगेगी, उन्हें लगेगा जिंदगी वेस्ट हो रही है। तो वो बहुत लकी हैं। अरविंद गौड़ साहब बहुत लकी हैं क्योंकि वो हर हफ्ते उनका कोई ड्रामा होता है, और मैं इतना लकी नहीं हूँ क्योंकि आजकल महीने में एक आध होता है। लेकिन साल में 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं, ऐसे लकी दिन भी आते हैं जिस दिन एक ही दिन में मेरी कहीं ना कहीं 2 परफॉर्मेंसेस, और एक आध बार साल में ऐसा भी होता है कि एक साथ 3 परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन जो डोपामीन है और सेरोटोनिन है और एंडोफिन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, उनकी तादाद कितनी होगी। उस दिन हमको ये याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता कि उसके कितने बिल्स जो हैं उनका पेमेंट होना है, बिजली का बिल गया है कि नहीं गया है, पानी का बिल गया है कि नहीं गया है। उस दिन आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ये जो एक फुलफिलमेंट का एहसास है ये बहुत इंटरनल है, और इसको वही महसूस कर सकता है जो जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हो। और जिस और हमारे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उदास हैं, सारी बातों के बावजूद उदास हैं, जो लोनली हैं, सारे अचीवमेंट्स के बावजूद लोनली हैं। तो एक टर्म्स
एक टर्म इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजिस्ट लोग, वो है अंडर अप्रिसिएशन। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो बिलियनर लोग हैं, मल्टी मिलियनर लोग हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें। उनकी बच्ची ने पहली मर्तबा एक छोटी सी तस्वीर बनाई, और माँ बाप के पास टाइम नहीं है, और माँ बाप ने देखा और हूँ कह दिया। तो उस बच्ची को जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, जो बॉन्डिंग के मतलब केमिकल्स हैं, वो कैसे मिलेंगे, जो कि थिएटर परफॉर्मर्स को और कल्चरल जो आर्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को अक्सर मिलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरोकेमिकली स्पीकिंग थिएटर जो है वो किसी बिजनेस परसूट से के मुकाबले में ज़्यादा उसको गेन हमें नज़र आता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है, एंडोर्फिन्स की जो मात्रा है, वो ज़्यादा मिलती है अप्रिसिएशन से, अगर आप वीकली परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, मंथली परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। और इसके मुकाबले में अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, उनसे 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी है, उनको एंजाइटी नहीं होती है, उनको फिक्र नहीं होती है कि उनके पैसे कहाँ से आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके भी लॉसेस हो जाते हैं और उनकी भी बहुत सी एंजाइटीज होती हैं। अभी जिस तरह से बिजनेस फील्ड बहुत तेजी से बदल रही है, तो आप देखिए कि जो ऑनलाइन सप्लाई चेन्स पैदा हो गई हैं, उसकी वजह से जो आपके फ्रेंडली नेबरहुड दुकानदार होते थे, उनकी बेचारों की रात की नींद उड़ी हुई है। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन ये प्रूवन बात है कि एक बिजनेस पर्सन एक थिएटर प्रैक्टिशनर के मुकाबले में फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, जब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी से उसको सेरोटोनिन जो है ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, डोपामिन के बारे में कहते हैं ये ऑलमोस्ट लव हार्मोन है। जब आपको पहली बार प्यार हो जाता है किसी से, या कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत लगती है, चाहे वो रेनबो हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो मोगरे की खुशबू हो, चाहे वो एक चंपा का आपने फूल लिया और आपने उसे अप्रिशिएट किया, तो जो आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, आपके चेहरे पे जो चमक आती है, वो बेसिकली डोपामीन है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे मिलते के साथ ही आपके चेहरे पे चमक आ जाती है, क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। तो मैं सिर्फ इसे वहां तक लिमिट नहीं करना चाहूंगा कि व्हेन यू आर इन लव आपको वो मिलता है, नहीं। यू आर इन लव विद सो मेनी थिंग्स, यू आर नॉट इन लव विद फ्यू इंडिविजुअल्स ओनली। दुनिया की जितनी खूबसूरत चीजें हैं, वो आपको लव हार्मोन ही बेसिकली देती हैं, बिकॉज वो आपको लवली लगती हैं। तो इसको अगर मैं समराइज करूं, तो देखिए, जो थिएटर प्रैक्टिशनर है, वो इन केमिकल्स की वजह से ज्यादा फुलफिल्ड महसूस कर सकता है, ज्यादा हैप्पी महसूस कर सकता है। वो अकेले में भी हो सकता है मुस्कुराए किसी चीज को याद करके। जबकि इसके मुकाबले में जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, इस बात की कोई खबर नहीं है कि वो अकेले बैठ के मुस्कुराते हैं कि उनके पास आज 10 लाख रुपए आ गए, बिकॉज उनकी उनकी तो 10 लाख रुपए आने की आदत हो जाती है। तो ये कंपैरिजन मैं एक प्रियम्बल के तौर पे, एक तमहीद के तौर पे, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे करना चाहता था, ताकि आज का जो पूरा इंटरेक्शन है, हमारा जो डिस्कशन है, और काश ये डिस्कशन इन पर्सन होता या ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होता, तो आप लोगों को देख के मुझे बहुत सी बातों का अंदाज़ा हो जाता, जो मुझको थिएटर में हो जाता है, कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या उसे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, या आपके जहन में कुछ सवालात हैं। तो इस वक्त जो है आप सबकी तर्जुमानी जो है वो सैयद मुबीन जहरा कर रही हैं, तो उनको देख के मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो भी आप तक पहुँच रही हैं, तो ये बहुत आम सी बातें हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो आपने भी ज़िंदगी में महसूस की हैं। और एक टीचर भी, इत्तेफाक की बात यह है कि एक टीचर भी थिएटर परफॉर्मर ही होता है। आप ये देखिए, एक बहुत अच्छी क्लास करने के बाद जब आप क्लास से वापस आते हैं एक टीचर के तौर पे, और आपको मालूम होता है कि आपने आज बहुत अच्छी क्लास हुई आपकी और बच्चों की सारी बातें आपकी समझ में आई, तो आपको आपको ये सारे, ये जो 4-5 केमिकल्स मैंने आपको बताए हैं,
ये आपको भी मिलते हैं, इनका भी संचार प्रसार होता है आपके जहन में। तो हमारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जामिया में, एमसीआरसी में, जो थिएटर भी करते हैं और क्लासरूम भी करते हैं। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि देखिए, एएमयू में हमारे, जब हम मैं पढ़ता था तो वहाँ पे जो बहुत बड़े क्लासरूम्स होते थे, उनको क्लासरूम थिएटर कहा जाता था, बिकॉज वो अंग्रेज़ों के ज़माने का आर्किटेक्चर था और वो थिएटर की Mhm. तरह डिज़ाइन किए जाते थे। जैसे एक आज ऑडिटोरियम होता है, बिल्कुल उसी तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता था। और उसमें जो टीचर है वो एक परफॉर्मर के तौर पे, हालांकि उस ज़माने में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते थे, हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे, हमारे पास बड़े स्क्रीन्स नहीं होते थे, लेकिन बहुत डायनामिक, बहुत ज़बरदस्त टीचर्स होते थे और जो बड़े हीरोइक हमको लगते थे, क्योंकि वो नेशनल फिगर्स होते थे। तो जो परफॉर्मेंस होती थी वो ऑलमोस्ट थिएट्रिकल होती थी। तो इसलिए मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, डोपामीन का, सेरोटोनिन का, ऑक्सीटोसिन का, एंडोर्फिन्स का, ये सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं है। ये क्लासरूम में भी मतलब आप इसको शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज बहुत अच्छी क्लास हुई और आज आप खुश हैं, आपका मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्लास हुई, तो इसका मतलब ये वही थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जो हम किसी ऑडिटोरियम में महसूस करते हैं एक बहुत अच्छी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद। और यही वजह है कि बहुत सारे थिएटर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडिक्ट हो जाते हैं का मतलब कि उनको वो डोज चाहिए है, उनको वो अप्रिसिएशन चाहिए है, वो परफॉर्मेंस के बाद की उनको वो फीलिंग चाहिए है। तो चाहे उनको उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट ना मिल रहा हो, चाहे उनको फाइनेंशियल फुलफिलमेंट ना हो, लेकिन वो आते हैं, बार बार आते हैं, वो रोल करने के लिए आते हैं। वो महीने, 1 महीना या 40 दिन रिहर्सल करते हैं एक परफॉर्मेंस के लिए, और उस परफॉर्मेंस के बाद वो उस मोमेंट की तलाश करते हैं जब उनको वो अप्रिसिएशन मिलेगा, और जब वो सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड अप्रिसिएशन उनको मिलेगा। जी। तो चलिए, इस छोटा से तो नहीं कहना चाहिए, काफी लंबी बात हो गई शायद। हाँ जी। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं कहना चाहूंगा आपसे कि द मैजिक ऑफ थिएटर लाइज नॉट ओनली इन इट्स आर्टिस्ट्री, but also in the neurochemical choreography or symphony that derives, performances and their response to appreciation from audience. अम, इसके लिए मैं एक सबूत में एक एक चीज पेश करना चाहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक फिल्म के 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और उनको मिलते भी हैं, करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, और उसके बावजूद वो थिएटर करते हैं, और थिएटर में उनको कुछ भी नहीं मिलता है कई बार, लेकिन वो थिएटर करते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक आदमी एक फिल्म में काम करता है और कई करोड़ रुपए लेता है, और वही आदमी थिएटर के लिए वॉलंटियर करता है कई बार, और बगैर किसी पेमेंट के भी काम करता है। नसीरुद्दीन शाह साहब इसके एक बहुत अच्छी मिसाल हैं इसकी, कि वो दोनों फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। और सिर्फ नसीरुद्दीन शाह नहीं, जो रत्ना पाठक की जो फैमिली है उसमें जितने भी लोग हैं, गुजराती थिएटर के जितने लोग हैं, मराठी थिएटर के जितने लोग हैं, ये सारे लोग वो हैं जो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और उसके बाद शाम में अपना रेगुलर थिएटर करते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी जाने माने मतलब करेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो सब थिएटर के भी आर्टिस्ट हैं। तो अब यहाँ पे सवाल एक ये है कि जब वो उन्हें थिएटर में फिल्मों में काफ़ी पैसे मिलते हैं, तो वो थिएटर में क्यों काम करते हैं, और अक्सर बगैर किसी पेमेंट के काम करते हैं। Mhm. तो ये इस बात का सबूत है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही, कि उन लोग मैंने मेरी खुद भी उन लोगों से कई बार बात होती है, और हम कभी उनको बुलाते हैं तो बड़े शर्मिंदा से रहते हैं कि देखिए ये तो इतने पैसे इनको मिलते हैं, और हम जैसे टॉम अल्टर साहब थे, तो टॉम अल्टर साहब के साथ मुझे भी काम करने का एक आध बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता था देखिए इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनको तो मतलब करोड़ों रुपए मिलने चाहिए, और देखिए ये हमारे एक साथ काम करने को तैयार हो गए। और तो उन लोगों का ये कहना था कि जब हम फिल्म में काम करते हैं तो हमें फिल्म में हम काम करके आ जाते हैं, और वो काम जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है एट टाइम्स, बिकॉज काफ़ी काफ़ी क्लटर्ड होता है,
आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइन से, आप श्योर नहीं है अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, डायरेक्टर कहता है कि शॉट जो है ओके है, आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, और आप पजल्ड रहते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और आपको पता नहीं चल पाता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद वो फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, कई बार वो फिल्म बंद हो जाती, आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि वो फिल्म जो है रिलीज नहीं होती। मतलब अराउंड कहना चाहिए 25-30% फिल्में ऐसी हैं जिनकी शूटिंग होती है, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाती है। इसकी मिसाल ये है कि इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत कामयाब हैं, उनको काफ़ी बड़े बड़े पेमेंट्स मिलते हैं, लेकिन खुद उनकी कम से कम 25-30 फिल्में मुकम्मल पड़ी हुई हैं जो उनके बड़े आर्टिस्ट बनने से पहले लोगों ने बनाई थी, और आज उनको थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मतलब रीजंस। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि ये जो लोग थिएटर में काम करने को तैयार रहते हैं और एक खास एडिक्शन की वजह से तैयार रहते हैं, तो वो क्यों तैयार रहते हैं? रीजन ये है कि जब वो फिल्मों में काम करते हैं तो कई बार वो फिल्में जो हैं एग्जीबिशन तक नहीं पहुंचती, उनको दिखाया नहीं जाता, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद साल भर के बाद वो रिलीज होती हैं, और जब वो रिलीज होती हैं तब उनको उस दिन वो अप्रिसिएशन मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो जिस दिन आपने शॉट दिया, आपने बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दी, उसके एक साल के बाद अगर आपको उसका अप्रिसिएशन मिलता है, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है? तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यस सर। तो ये जो है थिएटर में जब आप आह भरते हैं तो उसका जो है असर आपको फौरन मिल जाता है। आपने एक 1 घंटे की 1.5 घंटे की एक परफॉर्मेंस की और उसके फौरन बाद आपको उसका रिवार्ड मिल गया, रिवार्ड मिल गया, और उसके बाद ऑडियंस आई आपके पास और उन्होंने आपसे बातें की और उन्होंने बताया कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो ये जो डोपामीन है इसको हम रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं। रिवार्ड हार्मोन का मतलब ये है कि जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपका आपका ब्रेन, आपका सिस्टम, आपका न्यूरोकेमिकल सिस्टम आपको एक रिवार्ड देता है। तो ये रिवार्ड जो है ये बायोकेमिकल रिवार्ड है जो अंदर से आपको हासिल होता है, बाहर से नहीं आता। बाहर से बिजनेसमैन के पास, मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन होता है और उनके पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं, उनके पास 20 लाख रुपए आ जाते हैं, और जबकि एक अच्छे सिंगर के पास, एक अच्छे म्यूजिशियन के पास, एक अच्छे एक्टर के पास वो नहीं आता है ट्रांजैक्शन, और इंटरनल एक ट्रांजैक्शन होता है, और डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन ये आ जाता है। जी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 आपको आर्गुमेंट दिए इंडस्ट्री से और थिएटर से। आई होप जी। मैं आमतौर से देखिए बहुत इनकोहेरेंट रहता हूँ, और जी। बिल्कुल मतलब कोई मैंने खुद अपने आप को अगर देखा होता जब मैं 20 साल का था तो मैं अपने आप को पागल समझता। तो उम्र के साथ साथ हम लोग इनकोहेरेंट होते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बातें कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं और दूसरे भी समझ रहे हैं। तो आई होप कि मैं आज बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंट नहीं था, और मैंने जो भी कहा शायद मैं आप तक पहुंचा पाया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमको प्रेज से मिलते हैं, अप्रिसिएशन से मिलते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि बहुत सारे लोग समाज में काफ़ी उदास होते हैं, और ये उदासी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन के लेवल पे भी पहुंच जाती है, और इसका एक छोटा सा कारण होता है, और उसे हम कहते हैं अंडर अप्रिसिएशन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आई है जिसका नाम है एडोलिसेंस, और जो कि जी। बहुत फ्राइटनिंग है, और यस। उसे जिसने भी देखा है उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। फिक्र ये हो रही है कि यूरोप जैसे मुल्क में जहाँ पे मतलब हम समझते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं 12 साल के, 14 साल के जो लड़के हैं, और हार्मोनल रीजन से वो जो दूसरा जेंडर है वो उससे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो एक टर्म वो उन्होंने कॉइन किया है, और वो है कि भाई एक आदमी तो हमारे
देश में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो एक आदमी है, वो तो अपनी चॉइस से सेलिब्रेट है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रेट इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो इनवॉलेंट्री सेलिब्रेट होने का जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से बहुत सारी मिसोजिनी पैदा होती है, बहुत सारी पैट्रियार्की पैदा होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए जेंडर रिलेशंस में लड़के लड़कियों के बारे में बहुत सारे अजम्पशंस पाल लेते हैं, नफरत पैदा कर लेते हैं, एक डिसलाइक पैदा कर लेते हैं, एक अलग तरह की कम्युनिटी बन जाती है। स्कूल्स में भी जब आप देखते हैं कि लड़कियां अलग बैठी हैं और लड़के अगर अलग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि मतलब एक ही स्पीशीज में आप दो स्पीशीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब Mhm. सवाल यह है कि इसका रीजन क्या है और किस तरह से ये उन बातों से रिलेटेड है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। रीजन है अंडर अप्रिसिएशन। आमतौर से लड़के जो हैं समझा जाता है, अरे भाई वो है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो आपने बहुत मशहूर डायलॉग है, तो ये तो टफ होते हैं। तो लेकिन Men don't cry. जी जी जी, नार्सिसिज्म जी. की जो कैफियत है कि आईने के सामने आदमी खड़ा होता है, आदमी का मतलब बच्चा खड़ा होता है, अपने को देखता है और उसे लगता है अरे आई एम लुकिंग गुड। उसके बाद वो बाहर आता है और उसके पापा उसे डांट देते हैं, मम्मी अपनी अलग स्ट्रेस में है, वो कहती है तुम्हें यही सवाल रहता है, हर वक्त ये करते रहते हो। तो आप ये समझिए, ये जो सेल्फी जनरेशन है, ये सेल्फी जनरेशन क्या है? ये सेल्फी जनरेशन का मतलब आदमी अपनी सेल्फी क्यों लेता रहता है? क्योंकि वो अंडर अप्रिशिएटेड है, उसे दूसरे से अप्रिशिएशन अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी सेल्फी लेके देखना चाहता है कि मैं कितना क्यूट हूं, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। इस पे मुझे याद आया एक छोटा सा कि मुझे जो है शारदा यूनिवर्सिटी ने एक बार एक एक उसमें इवेंट में चीफ गेस्ट बना दिया गलती से। मतलब उन्हें नहीं बनाना चाहिए इस तरह के आदमी को चीफ गेस्ट, उन्होंने बना दिया। बच्चे जो है मुझे लेके गए और उन्होंने कहा सर आपको हमारे सेल्फी पॉइंट का जो है इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका सेल्फी पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, आपने बहुत मेहनत से इसे बनाया है, और आई एम सो टच्ड कि आप इससे इससे इसका इनॉग्रेशन मुझसे करवाना चाहते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मैंने आज तक पूरी जिंदगी में एक भी सेल्फी नहीं ली। तो मेरा जो ये करोड़ों रुपए का जो रिकॉर्ड है ये आपके इनॉग्रेशन से खराब हो जाएगा। और मुझे सच में ये नहीं मालूम कि ये फोन यूं करके और इसके वो क्लिक बटन को अगर मैं अंगूठे से हिलाऊंगा तो ये मेरा फोन गिर जाएगा, और ये जो है मतलब 10-12 हज़ार रुपए का मेरा और चाइना का दोनों का नुकसान हो जाएगा। जी. तो अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो पॉइंट जी है सर. अंडर एप्रिसिएशन। हर इंसान चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये क्या है कि मुझको अब एज दानिश इकबाल रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो मुझको एज इंडियन मिलनी चाहिए, एज दिल्ली वाला मिलना चाहिए, एज एन एजुकेटेड कम्युनिटी मिलना चाहिए, एज ए मेल मिलना चाहिए। तो एक इंसान जो है वो डूब रहा है अंडर अप्रिसिएशन के समंदर में, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो वो बेसिकली अप्रिसिएशन चाहता है और हर चीज में वो अप्रिसिएशन चाहता है। तो कई बार बच्चे जो हैं माँ बाप का टेंशन लेने के लिए बीमार हो जाते हैं कि हाँ, जब वो बीमार हो जाते हैं तो मम्मी छुट्टी ले लेती हैं। तो ये सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, अगर इस आर्गुमेंट से मैं कुछ बातें कन्वे कर सका, कि जब आप ऐसे बच्चे को जिसको अप्रिसिएशन की जरूरत है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे को, हर बच्चे को अप्रिसिएशन की जरूरत है। Mhm. हर बच्चे को अपनी एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए, वरना वो नथिंगनेस का शिकार हो जाता है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। जब ऐसे बच्चे को हम एक हॉबी देते हैं, एक ऐसा थिएटर में डाल देते हैं या म्यूजिक में या डांस में या किसी भी कल्चरल परसूट में, और वो धीरे धीरे कुछ ऐसा करता है जो अच्छा होता है और दूसरे जब उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो वहां से वो न्यूरोकेमिस्ट्री शुरू होती है जो जिंदगी भर उसके साथ रहती है। और फिर आप जो एक्ट्रेस से मिलिए, आप सिंगर से मिलिए, उन्हें उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये इशू नहीं है कि मतलब उन लोगों ने उनकी कदर नहीं की। उन्हें ये शिकायत हो गई कि नहीं भाई, जितने पैसे होने चाहिए थे तो उतने नहीं है,
तो इस पे मुझे याद आता है, हमारे उस्ताद थे शहरियार साहब, अ, हमारे प्रोफेसर थे। हमारे प्रोफेसर का मतलब, हम तो केमिस्ट्री पढ़ते थे, वो उर्दू पढ़ाते थे, लेकिन एक ही हम्म। यूनिवर्सिटी थी। तो हमने मान लिया अपने को, जैसे द्रोणाचार्य को उन्हीं ने मान लिया था अपना गुरु। तो हमारे गुरु का बहुत शेर है कि जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कुछ कम है। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। और वाह। घर की तामीर, अब यहाँ घर जो है एक मेटाफर है। घर ये घर नहीं है जो आप देख रहे हैं। घर की तामीर तस्वुर में ही हो सकती है। अब ये जो हम दुनिया बनाना चाहते थे, जिस तरह का समाज चाहते थे, जिस तरह की जिंदगी चाहते थे, तो उस पहले शेर से आ गया, जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। और घर की तामीर तस्वुर में ही हो सकती है। तो जितने क्रिएटिव लोग हैं, ये एक इमेजिनरी दुनिया में क्यों रहना चाहते हैं? गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस की किताब है 100 Years of Solitude। तो सॉलिट्यूड। आप उसे पढ़िए। तो आपको जी नहीं चाहता कि उस यूनिवर्स से आप बाहर आए। तो घर की तामीर तस्वुर में ही हो सकती है। जब उनसे कहा गया गैब्रियल से कि हॉलीवुड जो है उस पर फिल्म बनाना चाहता है, उन्होंने कहा वो नहीं बना पाएगा, और मैं नहीं चाहता कि उसे बनाए, बिकॉज मतलब दे विल रॉब मी ऑफ माई इमेजिनेशन। तो हम्म। जो इमेजिनेशन की दुनिया है, अंदर की इनवर्डनेस की दुनिया है, वो बहुत खूबसूरत है। और जो रियल दुनिया है वो इतनी खूबसूरत नहीं होती है। तो इस पे हमारे उस्ताद का शेर मैं फिर से सुनाता हूँ कि घर की तामीर तस्वुर में ही हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। तो हम्म। ये जमीन का मतलब ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया, ये पूरा प्लैनेट, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं बनाना चाहता हूं अपने नक्शे के मुताबिक, ये जमीन कुछ कम है। और इस गजल में बहुत से दूसरे अच्छे अशार हैं, जिसमें से एक ये है कि कहीं कोई इरशाद चीज इरशाद सर। ज्यादा है। एक मिसरा है कि कहीं कोई चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। ठीक है। तो हर घड़ी होता है एहसास। तो ये जो है वो बिजनेसमैन है, जिसकी मैंने शुरू में आपसे बात की थी। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और जो हमारा आर्टिस्ट है उसके पास बहुत कम है। तो कहीं कोई चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो इस पे गालिब भी याद आ जाते हैं मुझे, कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब। ये जो इंसान की एम्बिशन है, जो ख्वाहिशात हैं, अब तक जो कुछ मैंने किया दुनिया में, अब तक जो कुछ आइंस्टाइन ने किया, अब तक जो कुछ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने किया, या साहिल लुधियानवी ने किया, या अमृता प्रीतम ने किया, वो क्या था? वो एक हमारी ख्वाहिश का, हमारी तमन्ना का एक कदम था जो हम चले। हम्म। तो है हम्म। कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार। जो कुछ हमने किया आज तक, गालिब ने जो कुछ लिखा, वो क्या था? एक कदम। तो वो पूछ रहे हैं, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब। हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। हम्म। दश्त वाह। इम्का यानी द होल यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इज जस्ट वन लिटिल स्टेप ऑफ मैनकाइंड्स इमेजिनेशन। तो अपने नक्शे के मुताबिक ये जमी कुछ कुछ। कम है। तो वाह। चलिए, मैं बहक गया था, और मैं बहक के लिटरेचर में, पोएट्री में नहीं इधर सर। उधर चला गया, जबकि मुझे अपने सब्जेक्ट पे रहना चाहिए। तो मैं माफी मांग के वापस अपने नहीं सब्जेक्ट पे आ सर। जाता हूँ। नहीं इट्स नहीं नहीं, ब्यूटीफुल मेरा ब्यूटीफुल। नहीं नहीं। बहुत माफी के साथ फिर से नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को फौरन एहसास होता है कि देखिए, अरे इनका तो सब्जेक्ट ये था, ये कहाँ चले गए। तो आप कहीं भी चले जाएं तो वापस जरूर आना चाहिए। इस पे देखिए, बहुत अच्छा शेर है उनका, परवीन शाकिर का, कि वो हाँ हाँ, वन कहीं ऑफ माय भी गया, फेवरेट सर इरशाद। हाँ हाँ। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बड़ी मेहरबानी। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। अब देखिए, ये हम्म। क्राइसिस है उस औरत का जिसका चाहने वाला
किसी दूसरे की मोहब्बत में फंस गया। अब यहाँ मेटाफर ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा चाहने वाला सिर्फ थिएटर करे, लेकिन हमारा Mhm. चाहने वाला फिल्म में चला जाता है। ठीक है। Mhm. हमारा चाहने वाला टीचर बन जाता है, जामिया में प्रोफेसर हो जाता है, एमसीआरसी में पढ़ाने लगता है। तो अब यहाँ पे प्रवीण शाकिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थिएटर आपसे बात कर रहा है कि वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। अच्छा। अब हर जाई को समझिए, हर जाई वो आदमी है जो हर जा जाता है। हर जा, जा माने जगह। तो Mhm. किसी जमाने में हर जाई जो है वो उनको कहा जाता था, जो एक खास प्रोफेशन से जुड़ी हुई औरतें होती थी, और ये एक नेगेटिव टर्म था। तो हालांकि प्रवीण शाकिर जब कह रही हैं तो हरजाई का मतलब वो उस मानों में ले रही हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक थिएटर वाला आदमी दुनिया के सारे काम करने की कोशिश करता है पैसे कमाने के लिए, एक सिंगर भी, अगर संगीत से पैसे कहाँ से मिल जाएंगे, तो वो नौकरी भी करता है, वो कुछ कमाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस फिर आता है संगीत में। तो वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, अच्छा। और कू बकू फैल गई बात शनासाई की। Mhm. तो ये जो शनासाई की बात है, यानी थिएटर से शनासाई की बात है, ये आज की गुफ्तगू के जरिए आप सद तक पहुंच रही है, तो हम कहेंगे कि कू बकू फैल गई 170 लोगों तक। ये जो बात है थिएटर की, और थिएटर का जो भी केमिस्ट्री है, थिएटर की न्यूरो केमिस्ट्री है। तो आज की जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, आज की ये जो गुफ्तगू है, तो इसमें हम चाहते थे कि जो न्यूरोकेमिकल इक्विलिब्रियम है किसी परफॉर्मेंस का, चाहे वो थिएटर की हो, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो डांस की हो, या किसी भी मतलब आर्ट फॉर्म की हो, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी की हो, तो इसका जो एक्टिवेशन है, इसका जो इक्विलिब्रियम है, इसका जो इम्पैक्ट है, और इससे जो अप्रिसिएशन मिलता है, वो बहुत रेवोल्यूशनरी होता है, वो लाइफ चेंजिंग होता है। और वो जो आदमी दुखी होता है कि उसकी कदर नहीं की गई, वो अंडर अप्रिशिएटेड है, ये क्राइसिस तो कम से कम नहीं रह जाता। तो और एक अब चूंकि हमने 4-5 केमिकल्स की बात की, तो और एक पुराना केमिस्ट होने के नाते अब मैं चाहूंगा कि मैं कुछ डोपामीन के बारे में, और डोपामीन केमिस्ट्री के बारे में, डोपामीन इम्पैक्ट के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इन बातों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हर स्ट्रीम के लोग हैं, और नेचुरली बायो केमिस्ट्री के लोग भी होंगे, बायो साइंसेस के लोग भी होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि कुछ बातें मैं बताऊं और शेयर करूं आपके साथ। तो बेशक सर, प्लीज। डोपामीन को कहा जाता है फील गुड हार्मोन। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी कि वो हमारी नर्व्स को कुछ मैसेजेस ट्रांसमिट करता है, और एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करता है, जिससे हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं। आप देखिए कि 1 तारीख को मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन था, ठीक है, और आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ, ठीक है। तो क्यों हाजिर हूँ? क्योंकि 1 तारीख की जो आपके साथ इंटरेक्शन था वो अच्छा रहा, और मुझे अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मिली, मुझे थोड़ा सा डोपामिन मिला। अरविंद जी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि बड़ा अच्छा था सब कुछ, हालांकि मुझे मालूम है मेरा दिल रख रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। ये, नहीं सर, ऐसा नहीं वो क्या है। कहते हैं कि वो अरविंद मतलब जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अरविंद जी झूठ नहीं बोलते। नहीं नहीं, मैं अरविंद जी की बात नहीं, मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूँ। देखिए ये तो हक है नहीं। कि आदमी अपना मजाक उड़ाए, और देखिए इससे पहले कि दूसरे आपका मजाक उड़ाएं, बेहतर है कि आप अपना मजाक उड़ाएं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अगर लोग हम पे हंसते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप ऑड पर्सन आउट हैं, आप मिसफिट हैं। लेकिन जब आप खुद अपने अपनी हरकतों पे हंसते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों पे हंसते हैं, जैसे मैं आधा दिन अपनी रोज़ाना आधा दिन जो है अपनी बेवकूफ़ियों को सेलिब्रेट करने में लगा देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरे आसपास के लोगों को मुझ पे हंसने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें लगता है अरे अरे जो जो मेरे दिल में है ये तो सब जानते ही हैं,
कि ये कितने स्टूपिड आदमी हैं, रोजाना कितनी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तो हम वापस आएंगे कि फील गुड हार्मोन अगर और कुछ किसी और चीज से नहीं मिल रहा है, जैसे आज मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो चलिए मैं आज अपना मजाक उड़ाता हूँ। अपना मजाक उड़ाया, मैंने अपनी लिमिटेशंस का मजाक उड़ाया, अपने ये देखिए ये जो बेबालों बालों पर मेरा सर है, मैं अपने क्लासरूम में भी इसका मजाक उड़ाता हूँ कि देखिए हम जो है कहते हैं ना बेपर की उड़ा रहे हैं। एक पुराना मुहावरा था कि अरे फलाने साहब तो बेपर की उड़ाते हैं, यानी कि चिड़ियां जो होती हैं उनके पर होते हैं, मक्खियां होती हैं उनके पर होते हैं, मच्छर होते हैं उनके पर होते हैं, तो वो तो उड़ते हैं, लेकिन एक साहब वो साहब तो बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं, बेपर की उड़ा रहे हैं। तो ये जो बेपर की उड़ाना है यानी मीनिंगलेस बातें करना, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं, इससे पहले कि दूसरे मजाक उड़ाएं आप अपना खुद उड़ाइए। तो ये इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं जिससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है, और यही केमिकल है जो एक्टर्स को मोटिवेट रखता है, और उनके उनकी जो हार्ट रेट है उसको उसको पंप करता रहता है, और हम्म, उनका जो आर्ट है, उनका जो क्राफ्ट है। और जब एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जब ताली बजती है ऑडियंस हम्म, की, जो अप्लास होता है, इंस्टेंट अप्लास आता है, उस वक्त आप उस एक्टर का चेहरा देखिए, वो उस वक्त दुनिया का हैप्पीएस्ट आदमी होता है। और उसके बाद आप बिल गेट्स साहब को देखिए, तो बिल गेट्स साहब के चेहरे पे वो नूर नहीं होता है जो उस वक्त, हालांकि भाई बिल गेट्स साहब से ज्यादा किसके पास पैसा है, और उनके पास डोपामिन भी बहुत है, ऐसा नहीं है। रोज आना मुझे हम सबको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त भी हमारा जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसके पीछे उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी डोपामिन की कोई कमी है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट होता है इंस्टेंट अप्लास का, जब वो परफॉर्मर ऑलमोस्ट बिल गेट्स के लेवल पे पहुंच जाता है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। बिल गेट्स जीनियस हैं, दुनिया के अहम, जब भी ह्यूमन हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें आइजक न्यूटन और हमारे आइंस्टाइन का नाम आएगा, उसमें कालिदास का नाम आएगा, उसमें गालिब का नाम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिल गेट्स का नाम नहीं आएगा। उन्होंने भी दुनिया को बहुत ही मतलब बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से बदला है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो थिएटर में इंस्टेंट अप्लास आता है, और कई बार ऐसा अप्लास आता है कि एक्टर को भी मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन उसे अप्रिसिएशन मिलता है उस मोमेंट पे। उसके चेहरे पे जो डोपामिन की वजह से, फील गुड हार्मोन की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से जो मोटिवेशन आता है और जो हैप्पीनेस आती है, वो ऑलमोस्ट उस लेवल की होती है जो जरूर बिल गेट्स को मिलती होगी। तो इसे हम कहते हैं परफॉर्मर्स हाई। हाई हाई मिलता है। हाई का मतलब ये है हम्म, कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, और जो इसकी केमिस्ट्री है, जी नारकोटिक्स की जो केमिस्ट्री है, वो भी यही है कि वो जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक झूठा, एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस उनको थोड़ी देर के लिए मिलता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस स्विंग में होते हैं जो ड्रग्स या मतलब अल्कोहल और बुरी चीज़ों से आपको हासिल होती है। तो जितने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और अल्कोहलिक्स हैं, उनको भी मतलब जो केमिकली आप कहें, मुझे नहीं मालूम कि वो डोपामीन की वजह से है या किसकी वजह से है। तो अब यहाँ पे मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूँ, एम्फेसाइज ये करना चाहता हूँ कि ये जो केमिकल है फील गुड हार्मोन है, और ऑलमोस्ट लव हार्मोन भी आप इसे कह सकते हैं, ये परफॉर्मेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इट इनिशिएट्स एक्शन एंड एफर्ट। आप ये सोचिए कि 40 दिन की रिहर्सल करनी है, और उसके बाद मेट्रो में चलना है, उसके बाद पैदल चलना है, साइकिल से चलना है, और आज के मौसम में आप देखिए कि पसीने में भीगे हुए पहुंचना है, फिर रिहर्सल करनी है, उसके बाद फिर थके मांदे वापस आना है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दिन एक परफॉर्मेंस आएगी, और वो वहाँ पे, अब मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों ने वेटिंग फॉर गोडो आपने देखा होगा, और उसमें एक जो लंबी स्पीच है, जब आप परफॉर्म करते हैं वेटिंग फॉर गोडो, और उस स्पीच के बाद ऑडियंस जो है
आपको अप्रिशिएट करती है, ताली बजाती है। कई बार लोग ताली नहीं बजाते हैं, उन्हें लगता है अरे हम ताली बजाएंगे तो एक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उनके चेहरे पे एक फीडबैक आता है, और जो सिर्फ थिएटर में ही आप महसूस कर सकते हैं। आप अल पचिनो हैं और आप फिल्म में बहुत ग्रेट काम करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन ये तालियां अल पचिनो तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि शायद 2-3 ऑस्कर मिलने के बाद उन्हीं ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो थिएटर करना चाहेंगे। क्यों क्यों जाहिर की थी? बिकॉज ये जो इंस्टेंट अप्रिसिएशन है, वो चाहते थे कि उसे टच करें। और जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं फिर वो अपने को गॉज भी करते हैं, अपने को बैरोमीटर की तरह से थिएटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी जो आर्टिस्ट्री है वो क्या लाइव परफॉर्मेंस में भी मतलब वो सस्टेन करेगी, क्या वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जी। एक जो गाना है जय हो, जो किसी और उसके लिए लिखा गया था, नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए कि उसकी जो कोरियोग्राफी है, जो एनर्जी है, जब उन लोगों ने परफॉर्म किया होगा उतनी एनर्जी के साथ, इम्पैक्ट के साथ, जो उन्हें हैप्पीनेस मिली होगी परफॉर्मर्स को। जो फिल्म मेकिंग है ये बहुत टायरिंग चीज़ है, ये टुकड़ों में शूट की जाती, और आप वहाँ पे देखिए शूटिंग के दौरान लोग कितने डिजेक्टेड होते हैं, बस जैसे ही शॉट शुरू होता है किसी तरह से एनर्जी लाते हैं। तो मैं उस मोमेंट को याद दिलाना चाहूँगा कि जितने लोगों ने मेहनत की थी जय हो सॉन्ग को कोरियोग्राफी में कंट्रीब्यूट करने की, जब उन्होंने पहली बार पिक्चर हॉल में उसे देखा होगा तो उन्हें क्या फील किया होगा। ठीक है। अ, तो वो है डोपामीन। और मैं याद दिलाना चाहूँगा सलमान खान का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, जिसका हम लोग अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। जी। तो ये क्या है? ये वही कमिटमेंट है कि जो थिएटर प्रैक्टिशनर है उसने एक बार, जब एक बार ये तय कर लिया कि थिएटर इज माय ड्रग, थिएटर इज माय डोज, थिएटर इज माय रिक्वायरमेंट, थिएटर इज माय हैप्पीनेस, थिएटर इज माय कमिटमेंट, फिर वो बेचारा वो वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। हाँ सर। जी। तो ये जो हार्मोन है ये फोकस को इम्प्रूव करता है, और ये आपके अंदर ड्राइव पैदा करता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत से काम करना चाहते हैं लेकिन हम ड्रिवन नहीं होते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, तो इस हार्मोन को हम मोटिवेशन हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इस पे मुझे याद आया, मैं बहुत ही बेवकूफ़ी के मिसालें आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें मेरी बातों से, बीच बीच में आप मुझ पे हंस सकें। तो दिल चाहता है आपने ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो देख हम्म। लीजिएगा। जी, तो दिल चाहता में एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। आमिर हम्म। खान का अच्छा डायलॉग है कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, ये सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर है। कोई बेवकूफ आदमी ही अपने को परफेक्ट कह सकता है, बिकॉज खुदा के अलावा, खुदा एक कॉन्सेप्ट है, खुदा के अलावा तो कुछ परफेक्ट नहीं है। एक बहुत मशहूर अंग्रेजी के पोएट हैं जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनका यह है, उन्हीं ने इबादत के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि आई द इम्परफेक्ट अडोर माई ओन परफेक्ट। अब ये है सूफीज्म। अगर आप इसको एनालाइज करें तो दी होल जो हमारा भक्ति मूवमेंट है इंडिया का, या जो इंटरनेशनल सूफीज्म है, यू कैन डिफाइन दिस द होल ट्रेडिशन ऑफ सूफीज्म एंड भक्ति कल्ट विद दिस वन लिटिल सेंटेंस, आई द इम्परफेक्ट अडोर। किसकी पूजा करता हूं मैं, किसकी इबादत करता हूं? मैं एक परफेक्ट की इबादत करता हूं। तो आई द इम्परफेक्ट अडोर माई ओन। खुदा क्या है, ईश्वर क्या है? वो सिर्फ हमारा है। जब हम उससे बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो जो है किसी और का भी है, तो वो सिर्फ हमारा है। तो वो सिर्फ यहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके अलावा, मतलब खुदा के अलावा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आमिर खान का डायलॉग है कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता।
और एक्टर जो है अपने बारे में कह रहा है। तो कितनी खूबसूरत लाइन है जिस आदमी ने लिखी, जो इसके राइटर हैं। उन्हें डोपामीन मिला होगा बहुत सारा, और इसे बोलने वाले को मिला। और देखिए अभी मैंने जब इसकी मिसाल दी तो भी अच्छा फील किया मैंने इसको एक्सप्लेन करते हुए कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये जो डोपामीन है ये आपको परफेक्शन की चाहत आपके दिल में बढ़ाता है। नेचुरली कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम डिजेनरेट भी हो रहे हैं ना। इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जमाने में हम कितने इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए खंडर रह गया। तो खंडर बता रहा है कि इमारत अजीम थी। तो ये जो डीजनरेशन है इसका मतलब कि वी आर मूविंग रनिंग अवे फ्रॉम परफेक्शन। लेकिन डायलॉग कह रहा है कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए एक आयरनी है, पैराडॉक्स है, और ये एक अच्छी क्रिएटिव लाइन है। जी, इसी तरह से मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको याद दिलाने के लिए, जब वी मेट आप लोगों ने जरूर देखी होगी, कि नहीं देखी तो देखिए, Hmm. और सिर्फ इसलिए देखिए कि करीना कपूर को देखने के लिए देखी। मैं करीना कपूर का फैन नहीं हूं, लेकिन उन्हीं ने जो उसमें रोल प्ले किया है उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, और वो लाइन है, मैं अपनी फेवरेट हूं। Favorite home. Yes. मैं अपनी फेवरेट हूं। ये क्या है Uh-huh. देखिए, दिस इज सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर। ठीक है। Mhm. होना ये चाहिए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अप्रिसिएशन, अंडर अप्रिसिएशन। तो ये करेक्टर बता रहा है कि करीना कपूर इज अंडर अप्रिशिएटेड, नॉट करीना कपूर। उनको तो पूरा कंट्री अप्रिशिएट कर रहा है, इस वक्त हम भी कर रहे हैं। द कैरेक्टर इन द फिल्म जब वी मेट वाज अंडर अप्रिशिएटेड। Mhm. वो करेक्टर कह रहा है कि मैं अंडर अप्रिशिएटेड हूँ, लेकिन फिर वो भी ये भी कह रहा है कि बाकी दुनिया से मुझको जो है उसकी जरूरत नहीं है कि मैं उनकी फेवरेट हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। मैं सारे समाज की फेवरेट हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है। तो अब ये जो अपनी फेवरेट होने का जो एलिमेंट है, दिस इज क्रिएटिव। और ऐसी लाइनें किसको मिलती हैं? वो लकी लोग हैं जिनको इतनी खूबसूरत लाइनें मिल जाएं। और वो लकी लोग हैं जो इतनी खूबसूरत लाइनों को इतने खूबसूरत अंदाज से कन्वे कर सकें, एक्ट कर सकें। और देखिए आज हम उन लाइनों को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? इन लाइनों ने डोपामीन दिया उनको, उनको भी दिया और हमको भी दिया। जब हम इनकी बात करते हैं तो एक एक कनेक्शन पैदा होता है, विच इज लाइक लव कनेक्शन। जो फीलिंग होती है, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा लव कनेक्शन का मतलब, ऑल दोज थिंग्स विच वी लव, नॉट द रोमांटिक लव, ऑल दोज थिंग्स विच आर लवली टू अस, वो डोपामीन जिसे कहना चाहिए आर कैटलिस्ट फॉर डोपामीन। तो जब एक्टर्स इस लेवल पे पहुंचते हैं, इस लेवल की परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये जो हमारी न्यूरो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, ये अपना रोल प्ले करती है, और फिर हमको जो हमेशा के लिए उसका क्या कहना चाहिए, चाहने वाला बना देती है, इफ नॉट एग्जैक्टली एडिक्ट, बट ऑलमोस्ट इन दैट वे। और तो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एक बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, हम उन्हें कैसे कोप करें। तो ये जब कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया, बड़ी परेशानी आ गई, तो उस वक्त हम अपने से वादा करते हैं जैसे ही ये खत्म होगी तो हम एक जगह घूमने जाएंगे, हम कुछ दिन की छुट्टी लेंगे, हम पहाड़ों पे जाएंगे, हम समंदर के किनारे जाएंगे, या फिर हम एक परफॉर्मेंस करेंगे, अगला प्ले करेंगे। तो आदमी अपने आप को रिश्वत देता है, Mm. इंसान किसी दूसरे को नहीं, खुद अपने आप को। देखिए आप जब बहुत परेशानी में होते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने से वादा करते हैं कि ये सब ठीक हो जाने दो, उसके बाद फला जगह जाएंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो बेसिकली आप अपने से डोपामिन का ही वादा कर रहे होते हैं। और ये जो वादा होता है ये आपको क्या देता है? ये सेल्फ जनरेटेड रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड बाहर से नहीं आता है। मैं इस बात को, आई एम सॉरी कि मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं एक ही बात, मेरे पास ज़्यादा
कंटेंट नहीं है, मैं एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो इम्पैक्ट है थिएटर का, और जो थिएटर की केमिस्ट्री है, ये आपको सेल्फ जनरेटेड रिवॉर्ड्स देती है। ये कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स ज़रूर नहीं कि आपको दे। और एक और बात है कि खुश वो लोग होते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो आप सड़क पे जा रहे थे, आपने देखा कि एक औरत भुट्टा भून रही है, और आप उसके पास खड़े हो गए और आपने भुट्टा लिया और आपने उसे खाया। आपने उसे ₹20 दिए, उसने 15 माँगे थे, तो वो खुश हो गई, ठीक है? आप भी खुश हो गए कि भई आपने एक सरप्राइज़ दे दिया है एक गरीब औरत को, और उसके बाद आपने उस भुट्टे को खाया। तो ये क्या है? एक छोटी-सी विन हुई उसकी, और छोटी-सी विन हुई आपकी। तो थिएटर में हम क्या करते हैं, ये छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ या विन्स, विक्ट्री तो नहीं कहना चाहिए, विक्ट्री बहुत बड़ा वर्ड है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हम लाइट हार्टेड स्पिन, हम किसी बात पे जब हँसते हैं, अपनी किसी बात पे हँसते हैं, आप दूसरों की किसी बात पे हँसते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। वो तो ये है कि आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर क्या है? जब आप खुद अपने ऊपर हँसते हैं। और जब आप अपने ऊपर हँसते हैं, तो लोग आपके ऊपर नहीं हँसते, वो बेसिकली आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो बेसिकली आप देखिए, आप अपना मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो अब आपका मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। तो इससे आपको एक जोश मिलता है, एक बूस्ट मिलता है, और दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ क्या कहना चाहिए, थिएटर, द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ थिएटर। इसी तरह से हम सेरोटोनिन की बात कर सकते हैं काफ़ी देर तक, लेकिन मुझे घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि ये ज़्यादा ज़ुल्म हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। हाँ तो सर, अब हम लोग मैं क्वेश्चन आंसर कोऑर्डिनेटर सेशन। साहिबा से पूछना चाहता हूँ। जी, जी, जी। जी, 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 ज़रूर। जी, जी। जी, जी। जी, अगर आप क्योंकि कुछ सवाल आ रहे हैं सर, एंड जी, देन ज़रूर। वी हैव, जी, ज़रूर। तो आप अगर कंक्लूड करते हैं तो मैं फिर सवाल लूँ सर। नहीं, 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 मैं कंक्लूड क्या मतलब, वो सवालों के जवाब में ही हाँ, कंक्लूड हो जाएगा, हाँ, मुझे लगता ठीक है। है सर, ठीक है, जी, ठीक है सर। जी, तो ये सवाल रिएक्शंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, मैं जी, वो भी जी, जी, पढ़ जी। देती हूँ। अ, नहीं, नहीं, रिएक्शंस इम्पोर्टेंट नहीं है। रिएक्शन से ओके मुझे सर। वो मिलेगा, मुझे डोपामाइन मिल जाएगा। वो डोपामाइन, दैट्स व्हाई। जी, जी, डोपामाइन मिल जाएगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी, सवालात जो जी। हैं, वो हम लोग ले लें तो बहुत अच्छा है। जी सर, जी, 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 जी। जैसी आपकी इजाज़त सर। चारू वैद जी हैं, वो मैं पढ़ देती हूँ, उन्होंने जो लिखा है। जी, सर, थिएटर are not theater art cinema cosmetic remedies for tackling stress? The real issue is sociological, demographic, and economic, that we are globally so large a population today that we have become liabilities uh, instead of assets. Is the fact that we need appreciation from others not a case of low self-worth? ये चारू जी जी, जी, पूछ रही हैं। जी, जी। इनका नाम क्या है चारू जी का पूरा? चारू वैद जी हैं। चारू जी, जी, इफ यू कैन। चारू वैद जी, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुशी की बात है कि आपने इतनी इतनी फिलॉसफिकल बात और इतनी सच्ची बात कही। आपने जो बात कही बिल्कुल सच है, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, और बिल्कुल मैं भी वैसे ही सोचता हूँ। लेकिन देखिए, मुझे मेरा तो जो सब्जेक्ट आज का दिया गया था, मुझे अपने को उसी के आसपास रखना था, और जो लार्जर इश्यूज हैं दुनिया की में, जो स्ट्रेस के और इनइक्वलिटी के, वो बिल्कुल वही हैं जो आप कह रही हैं, और मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये जो पूरी दुनिया की, जो पूरे प्लैनेट का जो भी क्राइसिस है, उसे ये बेचारा गरीब निकम्मा प्रोफेसर अकेले इस सेशन में तो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो वो जो बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, वो थिंकर्स के इश्यूज़ हैं, वो पॉलिसी मेकर्स के इश्यूज़ हैं, वो दुनिया को चलाने वालों के इश्यूज़ हैं, और जो अभी हमारा इश्यू है, वो एक छोटा-सा इश्यू ये है कि हम
जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया था, जी। इसे जो है उसके बारे में आपको कैसे बताएं। मैं माफी चाहता हूँ, किसी ने बेल बजाई, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। यस, आई विल। जी जी जी। अस्मा नहीं है, और मेरा एक अभी क्लास अच्छा, चल रही है। एक सेकेंड, आप अस्मा का नंबर दे सकते हैं? जी। एक मिनट रुकिएगा। 955 I think what Sir was trying, Charuji, he's talking about theater as a tool to control stress, how it can be used, and as he rightly said that there are experts on the subjects, as you rightly pointed out. So that's what Sir was trying to say. जी 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 जी। जी मैं सर। बहुत माफी चाहता हूँ, मैं बहुत नहीं नहीं, माफी बिल्कुल चाहता नहीं हूँ सर, प्लीज प्लीज ये कि प्लीज। मुझे जाना पड़ा छोड़ के। हाँ। और आप। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट, उन्हीं ने जो बात उठाई है वो बिल्कुल सच है। और हम्म। जाहिर सी बात है, जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं, और वो सिर्फ थिएटर से या मेरी बातों से तो हल नहीं होंगे। लेकिन एक छोटा सा पार्ट सोल्यूशन, मतलब बहुत बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन जो मेरा सब्जेक्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस करने की कोशिश की। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। डॉक्टर भगत सिंह बाकुनी जी हैं किरोड़ीमल कॉलेज से, ये लिख रहे हैं, Amrish Puri and Om Puri are best actors or theatre actors ever produced. Even Shyam Benegal appreciate them above all. They are powerhouse of acting. Uh, Being chemist, without doubt, chemistry is everything. Now, I don't know what he's trying to say. Probably he's trying नहीं to नहीं say नहीं, वो that सही कह रहे हैं। they are not. नहीं नहीं, वो सही है। जी सर। नहीं, मैं जी सर। समझ रहा जी हूँ वो सर। कह रहे हैं जो कह रहे हैं। जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया कि मतलब हाँ हाँ। आप सच कह रहे हैं, और मैं आपसे 100% एग्री करूंगा। और श्याम बेनेगल साहब को आपने याद किया यहाँ पे, तो मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि वो हैदराबाद के रहने वाले थे, और हैदराबाद में मैंने उनकी कई बार मदद करने की कोशिश की। ही वॉज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है हम सबका कि वो अभी हाल में हम सबको छोड़ के चले गए। जी What a plethora, what contribution he's had to the जी cinematic जी world. या बिल्कुल सही कहा सर आपने। चारू वैद जी ने रिस्पॉन्स दिया है। जी। she says, sir, you have spoken on dopamine etc. I think she has another question. To what extent can life be reduced to biochemistry? Is life just biology, or society psyche also have a part to play? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए Yes. देखिए चारू, एक्चुअली क्या था, मैंने आपको बताया कि जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया था वो मेरे दो साथियों ने उसको डकैती डाल ली उसके ऊपर, और वो उन्होंने रास्ते में लूट लिया और उस पे लेक्चर झाड़ के चले गए। तो अब जो है मैं एक ऐसा आदमी था जिसे एक सब्जेक्ट की तलाश थी, तो मैंने एक जबरदस्ती का सब्जेक्ट लिया, और मैंने उसके ऊपर जो है आज नहीं आपसे नहीं बातें सर, की। तो आई थिंक मैं पूरी तरह से, मैं भी जैसे आप कन्विंस नहीं है मेरे आर्गुमेंट से, मैं खुद भी उससे पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ। सर, तो सर मुझे माफ मुझे कीजिएगा, नहीं मैं। नहीं, मैं हाँ। सिर्फ ये मैं चारू से कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगी कि सर ये आपसे जी जी जी। ऐसा नहीं है कि आपसे कन्विंस नहीं है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, मुझे मुझे लगता है मैं वो वो नहीं कर रहा हूँ, वो मुझसे नहीं, मेरा मतलब है जो मेरा आर्गुमेंट है। जो देखिए आर्ग्यूमेंट है। देखिए देखिए, उनका शेर है, मजाज का शेर है कि हम्म। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत हम्म। मुश्किल है। तो आप देखिए इसकी इंटेंसिटी देखिए, बहुत हम्म। मुश्किल है दुनिया का संवरना। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज तक जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स, दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स, दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स, वो जो आए और उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने दुनिया को, गौतम बुद्ध ने क्या किया, आप देखिए, महात्मा गांधी ने क्या किया, मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, दुनिया को हम्म। संवारने की कोशिश की। जो आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, चारू हैं, ये सारे लोग जो हैं दुनिया को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजाज कहते हैं बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, और फिर वो कहते हैं तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। अब देखिए कितनी हम्म। अचानक, कितनी खूबसूरत बात हो गई कि एक लड़की है जो मजाज से बातें कर रही है,
और आप जानते हैं कि जब चोटी खोली जाती है तो उसमें थोड़े से कर्व्स आ जाते हैं बालों में, हम्म और वो हम्म लड़कियां जो है देर तक कंघे से उसे सीधा करती रहती हैं, और हम्म फिर जो है हम्म वो बाल टूटते रहते हैं, फिर वो यूं भी देखती हैं कि ये सीधे होगा कि नहीं होगा, खींच खींच के ये सीधे हो करती हैं। गया। तो अब देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। वो बात अलग है कि वो बेचारी अपनी जुल्फों का पेचो खम वो भी नहीं ठीक कर पाती है। और आज तक चारू दुनिया में जितने फिलोसफर्स आए, जितने थिंकर्स आए, कार्ल मार्क्स से लेके और गौतम बुद्ध तक, वो वही करने की कोशिश कर रहे थे जो आप करने की कोशिश कर रही हैं और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो नहीं सर, मैं बहुत बहुत मैं शुक्रिया। मैं 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 जल्दी मैं जल्दी बिल्कुल हार मानना चाहूंगा कि नहीं, मैं बहुत नहीं कामयाब नहीं, नहीं मैं हुआ। आपको जी मैं आपको डॉक्टर जी रुचिका शर्मा जी का कमेंट पढ़ देती हूँ। जी और अगर रुचिका जी बोलना चाहें तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी, फिर भी मैं उनका कमेंट पढ़ देती हूँ। It was a जी great session, sir, making us relook at theater in a different way than we often do. My concern are the decreasing attention span and focus on only one emotion seeking happiness. Theater being a place to explore all emotions, I'm glad you made us realize its well rounded role in our lives. मैं जी सर जी रुचिका जी के बड़ी मेहरबानी। सवाल पे मैं एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपने कहा कि सेल्फ एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है सर कि हम असलियत जानते हैं, रियलिटी जानते हैं, और हमें ये अंदाजा भी होता है, और क्योंकि हम सब पढ़े लिखे जहन हैं, हमें ये अंदाजा भी होता है कि थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो हम उस मिनिमम एप्रिसिएशन या मिनिमम सोर्सेज हमारा जो है, या जो मिनिमम जो हमारी जो रियलिटी है, एक रियलिटी चेक की जो बात होती है, उसमें खुश रहने की भी कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता सर कि हमने एक सुपरफिशियल दुनिया भी बनाई हुई है जहां हमको लगता है मतलब हम सब बिल गेट्स की तरह तो अमीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो हमारे पास है उससे होना तो भी हम नहीं चाहिए। खुश हो देखिए ही सकते हैं। हम सबको इतना अमीर होना भी नहीं चाहिए। देखिए बिल हाँ गेट्स के बिल्कुल। पास इतना पैसा होना, इट इज डिस्टर्बिंग। देखिए हाँ यस, रिसोर्सेस दुनिया में सारे इंसानों के पास बराबर होने चाहिए। एक आदमी के पास इतने बिल्कुल सारे रिसोर्सेस, तो एक तरह की इनजस्टिस है। अगर बिल्कुल। कॉस्मोलॉजिकल व्यू में देखा जाए, अगर आप खुदा होते और प्लेनेट को देखते तो आप कहते ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी हमारी दुनिया ऐसी है कि सारे रिसोर्सेज एक तरफ जा रहे हैं, सारी हैप्पीनेस एक तरफ जा रही है, और बाकी आप देखिए जो ट्राइबल रीजन्स में, मलकानगिरी फॉरेस्ट में जाके देखिए हम्म आप, या बोंडा घाटी में जाके देखिए कि उनके पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है, उनके पास एक फटी हम्म धोती है। तो ये दुनिया बहुत जस्ट दुनिया नहीं है, और इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता बिल्कुल। तो मैं हम्म। ये सारे कंसर्न्स जो हैं मैं आपके शेयर करता हूँ। और देखिए मुझे एक सब्जेक्ट था, मुझे जबरदस्ती उसको डिफेंड करना था, और मैं करता रहा। जी जी जी। नहीं तो सर, आप अगर जी इजाजत दें तो हम कुछ कमेंट्स जी पढ़ते जी, फौरन जरूर जरूर क्वेश्चन जरूर। पे भी जाएं सर, क्योंकि जी हमारे कंटेस्टेंट्स शायद लंच टाइम में जाना चाहते हैं। सर जी त्रिलोचन जैना जी ने लिखा है। उससे पहले मैं एक ये पढ़ना चाहूंगी सर, और ये मेरे भी बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं, और आई जी। थिंक एनी फिल्म ऑफ हिज यू वॉच यू आर सो स्ट्रेस फ्री। दिस संगीता दास जी हैं, उत्पल दत्त जी के बारे में बोल रही अरे हैं। वाह वाह वाह, क्या उत्पल बात है, दत्त, क्या बात है, क्या आई बात है। थिंक मतलब अगर मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा रोक के कि मैं जी अपने सर को प्लीज। उनका उनका चेला समझता हूँ, क्योंकि जब मैं प्री यूनिवर्सिटी में था, पीयूसी में था, तो एक वर्कशॉप हुई, और उसमें वो आए, हमारी यूनिवर्सिटी में आए, और हम कहीं दूर, कहीं इतनी सी मतलब उसमें बैठे हुए थे। तो आज तक मेरा जी चाहता है जब मैं अपना सीवी बनाऊं तो मैं उसमें लिखूं कि आई अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑफ ग्रेट उत्पल दत्त। और उनका खासतौर से वो जो कहते थे अंदाज था उनका, अच्छा 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 अच्छा। हाँ यस अरे यस, इट्स साहब, सो ग्रेट। क्या अभी मैं तो उन पे मैं आज फिदा भी हूँ, उन पे मैं बिल्कुल फिदा सर। हूँ और हमेशा फिदा सो रहूंगा जी। संगीता जी का ये ऑब्जर्वेशन था। संगीता जी, हम सब आपसे जी इत्तेफाक रखते हैं, हम मानते हैं कि उत्पल दत्त जी क्या जो बात है, थे, क्या एंड सी बात हाउ वी आर स्टिल रिमेम्बरिंग हिम। आई थिंक दैट इज व्हाट थिएटर डज, आर्ट डज, द आर्टिस्ट स्टेज जी फॉरएवर।
प्रियंका चंदाना जी, थैंक यू सर फॉर टुडे सेशन। थैंक्स सर। रुचिका जी का मैंने पढ़ दिया है। त्रिलोचन जैना जी कह रहे हैं, सर कैन वी बी स्ट्रेस फ्री बाय इंजेक्टिंग डोपामाइन एंड सेरोटोनिन हार्मोन टू डेवलप आवर हैप्पीनेस यूजिंग दीज हार्मोन्स। ये है। देखिए देखिए, इसमें अ, मैं बस एक एक लाइन का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, ये जो गलती है जो लोग करते हैं, ये यही सारे क्राइम्स का रास्ता जो है हमवार करती है, उधर ले जाती है। तो यहाँ पे जो सेल्फ जनरेटेड डोपामीन है वो टारगेट है। हम्म सेल्फ जनरेटेड, अंदर से निकल के आना चाहिए। अगर वो बाहर से हम्म आ रहा है, अगर वो अल्कोहल से आ रहा है, ड्रग से आ रहा है, तो नहीं चाहिए। हम्म। फिर वो नहीं नहीं हो हाँ पाएगा। जी हाँ सर, एक ये प्रतीक को, डॉक्टर प्रतीक कुमार जी को अनम्यूट किया जाए। सॉरी प्रतीक जी, वी वर जस्ट टेकिंग क्वेश्चन सो यू हैव टू वेट। प्रतीक जी, आप प्रतीक जी को अनम्यूट कर दीजिए। मानवेंद्र जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं एंड देन वी कैन कंक्लूड। नहीं, आप सभी को अनम्यूट कर सकते हैं, अब तो हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं नहीं सर, अच्छा। प्रतीक जी को अनम्यूट कर दीजिए। सिमी कपूर जी मेहता जी कह रही हैं, वेरी इंसाइटफुल एंड एनरिचिंग सेशन। ये सिमी कपूर, डॉक्टर सिमी कपूर मेहता जी हैं। प्रतीक जी को अनम्यूट नहीं किया गया क्या मानवेंद्र जी? वो तभी मैं ढूंढ रहे ये पढ़ होंगे, लेती इतने हूँ। इतने लोगों में वो हाँ ढूंढ रहे होंगे कि वो कहाँ पे। हाँ, एनीवे जी जी। सर, मैं जब तक प्रतीक जी आते हैं सर, मुझे एक, आपने कई फिल्मों के डायलॉग बोले और एंड डेफिनेटली दे आर अ माइलस्टोन इन सिचुएशंस व्हेन वी फील। प्रतीक जी आपका ऑडियो वो करिए, ऑफ करिए। नहीं हो रहा। Please मानवेंद्र unmute. जी Yeah, प्लीज। yeah, yeah. Now you're unmuted, please. हाँ हाँ, जी जी प्लीज जी प्लीज जी। गो अहेड क्विकली। वाह यस, Thank you. वाह थैंक यू। वाह। थैंक यू। सबको जी नमस्कार जी जी जी। सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहतरीन व्याख्यान के लिए। एक विषय है जो कि मुझे बड़े लंबे समय से तनाव देते रहा है। और मुझे याद है कि जिन दिनों मैं जेएनयू में स्टूडेंट हुआ करता था, तो उन दिनों मैं एक टीवी चैनल के शो में गया था जहां अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी सब लोग बैठे जी हुए थे। और वो बेसिकली आरक्षण फिल्म के प्रीमियम पे वो शो था। उससे जी संबंधित ही एक मेरा जिज्ञासा है जो आपके सामने रख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पे जो है अपने विचार साझा करेंगे। जी जी। जब बॉलीवुड के इतिहास को देखता हूं तो 1950 के बाद लगभग मान 80 साल लगभग हो गए हैं सर। लेकिन बॉलीवुड में अभी भी वंचित रिप्रेजेंटेशन है वो सर दिखता नहीं है। ये एक बड़ा तनाव देने वाला विषय है कि 80 साल का इतिहास है आजादी के बाद ही अगर देखी जाए। अगर आजादी से पहले मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि आलम आरा वगैरह तो उससे पहले के हैं, तो जी उसमें वंचित समाज का जो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग नगण्य है। इससे सर ठीक। है और लगता है कि किसी भी कौम की बात करें उसमें उस कौम के वंचित समाज का प्रतिभाग जो है वो दिखता नहीं है। तो इसको लेकर के स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। हालांकि मैंने अमिताभ बच्चन साहब, मनोज वाजपेयी जी से भी पूछा था। मैंने बच्चन साहब से सीधी फौरी तौर पे प्रश्न किया था कि सर जी क्या 80 साल के इतिहास में वंचित समाज के कोई लोग इस लायक नहीं थे कि वो दूसरा अमिताभ बच्चन बन पाए, मनोज वाजपेयी बन पाए। तो उस दिन भी ये प्रश्न अधूरा था और आज भी अधूरा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अपने विचार हमसे नहीं नहीं, साझा करेंगे। ये जी तो थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात कही मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। और मुझे जैसे मसान आपने देखी होगी, नीरज घेवन जी साहब हैं, वो तो उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और वो एक एक्सेप्शन है। इस तरह से ऐसा नहीं है। शुरू में देखिए, जो बॉम्बे टाकीज है उस जमाने में जब अछूत कन्या फिल्म बनाई गई थी, या बिमल रॉय का जो हम्म कंटेंट था, तो उस वक्त तक हमारा जो सिनेमा है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था। क्योंकि सिनेमा जो है साहित्य के पास था, सिनेमा आर्ट था। बिमल रॉय का जो सिनेमा है वो आर्ट है, और वो साहित्य के बहुत करीब है। आप इसी तरह से उस जमाने का जो मतलब मराठी सिनेमा है, वी शांताराम का जो सिनेमा है जिस जमाने में, और या आप महबूब को देख लीजिए। ये सारा जो सिनेमा था ये साहित्य के आसपास का था और जमीन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे उसी उन्हीं के जो शागिर्द थे, यानी कि बिमल रॉय के साथ जिन लोगों ने काम किया, या वी शांताराम के साथ जिन लोगों ने काम किया, या महबूब के साथ जिन लोगों ने काम किया, उसके बाद उन्होंने जिस तरह की चीजें बनाई, तो बिजनेस जो है धीरे धीरे हावी होने जी लगा। अभी हमारा जो सिनेमा है ये बिजनेस है, ये आर्ट नहीं है। और हम्म जब जो बिजनेस होता है, आपको मालूम है बिजनेस पैसे वालों का काम है। और हम लोग अभी इतनी देर से यही बातें कर रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज
बिल गेट्स आपके पास हैं और जो एक नए एक्टर के पास हैं, उसका क्या मुकाबला है। लेकिन आप जो बात हाईलाइट कर रहे हैं, ये हम सब का एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और होना चाहिए सारे राइट थिंकिंग लोगों का, कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है। अभी जैसे हमारे ये जो हैं राजकुमार राव, मुझे उन्हें देख के बहुत खुशी होती है कि भाई वो एक सर बहुत हम आपको कामयाब बता एक्टर दें, हैं। सर हम जी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि राजकुमार राव हमारे जी स्टूडेंट जी रहे जी हैं, जी जी, मुझे मुझे एआरएसडी मालूम कॉलेज के मुझे एलुमनाई। मुझे मालूम है। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है अच्छी तरह से, जी क्योंकि मैं सर। आपके कॉलेज में बहुत बार आ चुका हूँ। जी और सर। ये बात जो है जयदेव जी हमारे बहुत करम जयदेव फरमा तनेजा है। जी। जी जी यस जी यस। जी। तो जी, तो ऐसा नहीं कुछ है, हद तक देखिए सर प्रकाश धीरे झा धीरे की जो धीरे। फिल्में हैं, जी जी जी। कुछ, मैं सर एक मिनट बस रोक रहा हूँ, कुछ हद तक प्रकाश झा हाँ की जो फिल्में हैं उसको अगर देखा जाए हाँ तो वहाँ हाँ। कुछ हद तक वो काम करने की कोशिश की, उनके पात्र जो हैं वो वंचित समाज के लोग काफी हद तक रहते हैं। देखिए देखिए, पार तो एक पार जो फिल्म थी, अभी हम लोग बातें कर रहे थे, अगर आप उसे देखें फिर से, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी की जो फिल्म है पार, जी जी वो एक तो पैरेलल सिनेमा उस जमाने में मौजूद था और कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि वो स्टेट सपोर्टेड सिनेमा था, वो इंदिरा गांधी का पीरियड चल रहा था, और उसका फॉल आउट था, बिकॉज उस वक्त तक सोशलिज्म एक हमारा मॉडल था। अभी क्या है, ये सिर्फ बिजनेस है, और अब तो मीडिया भी बिजनेस है, अब तो थिएटर भी बिजनेस है। तो अब जो आप बातें कह रहे हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं इस प्लेनेट पे अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें जाते जाते एक टाटा बाय बाय के तौर पे, कि 50 साल बाद भी क्या मैं, जो आपने सवाल पूछा है, क्या मैं उसकी उम्मीद कर पाऊंगा। अभी जिस तरह के मतलब फोर्सेस जिस तरह से हमारे कंट्री को और दुनिया को शेप कर रहे हैं, इसमें वंचित समाज और वंचित होने वाला है। और इस बात की मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। सिर्फ फिल्म क्या, थिएटर में आप मुझसे पूछिए, क्या थिएटर प्रोफेसर में इकबाल, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर थैंक यू जी प्रतीक जी, आपका बहुत अच्छा थैंक यू प्रश्न था, थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना जवाब मिल गया हो। इसी दौरान हमारे कई पार्टिसिपेंट्स ने, जो प्रोफेसर इकबाल ने शुरू में कहा कि एक जमाना था कि जब ऐसी फिल्में बनती थी, तो उसमें कई हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने शेयर किया है कि ये फिल्में हैं जिसमें सुजाता है, जी जी बिल्कुल, सुजाता और बहुत अच्छी हाँ खूबसूरत फिल्म सुजाता है। है, जी सुजाता जी फिल्म है। और सर हमको ऐसी कुछ फिल्म हमें याद है, दामुल दामुल एक फिल्म थी जिसको नेशनल जी। अवार्ड मिला था। फिर अगर आप कमर्शियल सिनेमा में भी देखें तो हम पांच एक फिल्म थी जहाँ ठाकुर और एक फ्यूडल पर्सपेक्टिव को कैसे, पांच जो पांडव का एक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दर्शाते हुए कैसे वो हुआ था। और आज अभी हाल ही में भी आर्टिकल 15 एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी। तो ऐसी फिल्में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मैं अग्री करती हूँ प्रतीक जी लेकिन की ये बात से आटे में कि नमक के बराबर भी यस, नहीं है। जी, बिल्कुल उसकी आटे उनकी में जो नमक वो है। के बराबर भी हाँ, नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सर मैं एक लास्ट प्रश्न ले लूंगी, या और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करके कंक्लूड करना चाहूंगी। नॉट क्वेश्चन एज सच, लेकिन मैं जो बात कह रही थी सर, मैं वहीं से फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी और आपका शुक्रिया अदा करूंगी। एक ये फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी जो जी जी। फरहान अख्तर और जो दोस्तों की फिल्म है। तो उसमें एक मुझे ठीक पूरा तो याद नहीं आ रहा है, वो एक डायलॉग है उनका एक कि दिलों में अपने लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, सो ही इज ट्राइंग टू। तो मैं वो अक्सर मतलब उसको मानती हूँ कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉग है या डायलॉग है जो हम सुन सकते हैं। उसी तरह एक जो आपने करीना कपूर की जो फिल्म के बारे में कहा कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो जेंडर पर्सपेक्टिव से मैं उस फिल्म को ये देखती हूँ कि हर औरत को शी शुड ब्रेक अवे फ्रॉम ऑल द प्रेजुडाइसेस एंड बिकम हर ओन फेवरेट। तो थिएटर का जो मामला है, जो आपने जिस तरह से आपने हम लोगों को समझाया, मुझे लगता है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका अध्ययन रहा है, तो मैं इस बात को साधुवाद करूंगी कि आपने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ उसको सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देके हमको समझाया है। और इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर सर।
So before conveying my vote of thanks, क्योंकि अब हमारे जो participants हैं वो lunch में जाना चाहते हैं, जी 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 लेकिन जी जी I am just reminded of Helen Keller, sir, and जी I'm जी also जी reminded when I was just listening to your lecture, sir, I was reminded of Helen Keller. I was also reminded of Frida Kahlo. Frida जी Kahlo जी जी कहती हैं कि I paint my own reality. तो आर्टिस्ट वो होता है जो अपने जख्मों को एक्सप्रेस करता है, अपने स्ट्रेस, और वही उसका स्ट्रेस फ्री जोन होता है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द रियलिटी. शी आल्सो सेज दैट आई एम नॉट सिक, I am broken, but I am happy to be alive as long as I can paint. And that is यस what यस art does. And you very beautifully, sir, conveyed that what is the neurological perspective of it. इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं सर जो मैं करना चाहूंगी कि आपने एक खास तबके की औरतों के बारे में आपने बात की जिनको हमारे समाज में नाचने वाली कोर्टिजान कहा जाता है. तो एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल गाना है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का कि तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है. तो कहीं ना कहीं आर्ट कैसे पॉजिटिविटी लाता है हमारे समाज में, हमारे थॉट प्रोसेस में, उसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हार्मोनल पर्सपेक्टिव के साथ कन्वे किया. आपने अप्लॉज अप्रिसिएशन की बात की, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके कहूंगी जो आपके लेक्चर के बाद मैं लेके जाऊंगी कि इट लीड्स टू अमेजमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. If you have that applause and that appreciation, it leads to amazement of understanding, and I'm sure this amazement of understanding has happened with all the participants here who have heard your lecture. The best and the most beautiful things are just to be loved, and that is what we have to realize, and that is what your lecture has given us. Sir, on behalf of ARSD College and in collaboration with Ramanujan College, and on behalf of our respected principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, on behalf of the IQAC convener, Professor Vinita Tuli, and our team in charge, Professor Anjali Gupta, and my entire team here, the technical team, Dr. Manvendra, and all the participants who I must tell you, sir, that they are very actively involved. Their contribution, their questions, their observations are very, very sharp and very erudite. So I thank all the participants, and above all, sir, I want to thank you that you're always आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है वो तो सेम है, लेकिन the kind of contribution that you give in your every lecture is something amazing and something new. We take away something new every time when you come and speak. Thank you, sir, and I wish you all the very best. And on behalf of ARSD College, our principal and the entire team, and also the participants, I thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, sir, and you please keep doing good work. Thank you, sir. It was privilege, it was an honor to be with you and with fellow teachers. और सच्ची बात यह है कि हम लोग स्टूडेंट से बहुत सी ऐसी बातें नहीं कर सकते जो हम टीचर से कर सकते हैं. तो इसलिए खुद मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन था. जी बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. आदाब. Manvendra ji, so I'm sorry we just went a little above the time, so we can now wrap up for lunch session. Thank you, dear participants. Thank you all. Thank you. Yeah, so we can leave. Manvendra ji. We'll see you in the next session. You can leave. Thank you. I'm asking our tech team to finish the meeting.